آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 29 اگست 2025 اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ جرمنی نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کا دیا حکم۔ چائنا اور روس آئے ایران کے ساتھ کی سنیپ بیک سینکشنز کی مخالفت۔ ترکی کا بہت بڑا فیصلہ، اسرائیل سے تمام کاروبار اور فلائٹس روکی، ایئر اسپیس بھی کیا بند۔ غزہ سٹی کو IDF نے خطرناک وار زون کیا ڈکلیئر، موتوں کا آنکڑا 63,000 کے ہوا پار۔ غزہ میں ہیومینیٹیرین NGOs کی سیکیورٹی ہٹائی گئی، مدد اور موت کی ذمہ داری اب خود پر ہوگی۔ اسرائیل سے یمن لے سکتا ہے بڑا انتقام، کئی میسائل لانچرز کے موو ہونے کی خبر۔ اور وینزویلا کے صدر کا امریکہ کو چیلنج، کہا ہمارے ملک میں گھسنا ناممکن۔ ان کے علاوہ بھی ہیں اور کئی اہم خبریں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ۔ جرمنی نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کو کہا ہے۔ نئی پابندیوں کے بعد حالات ٹینشن سے بھر گئے ہیں۔ جرمنی نے جمعے کے روز اپنے شہریوں کو ایران سے نکل جانے کی ہدایت دی۔ یہ اعلان اس وقت آیا جب برٹن، فرانس اور جرمنی یعنی E3 نے مل کر ایران کے خلاف یونائٹڈ نیشنز کی پرانی پابندیاں یعنی سنیپ بیک سینکشنز دوبارہ لاگو کر دی۔ جرمن فارن منسٹری نے کہا کہ ایرانی حکام پہلے بھی یہ دھمکیاں دیتے رہے ہیں اور ممکن ہے کہ اب جرمن شہری، جرمن سٹیزنز اور ان کے مفادات بھی کسی جوابی کارروائی کی زد میں آ جائیں اگر وہ ایران میں رہتے ہیں تو۔ تہران میں جرمن سفارتخانہ بھی اس وقت صرف لمیٹڈ کونسلر مدد دے پا رہا ہے۔ گزشتہ روز 28 اگست کو 3 یورپی طاقتوں برٹن، فرانس اور جرمنی نے مل کر یہ قدم اٹھایا اور کہا کہ ایران نے اپنے ایٹامک پروگرام کے متعلق کئی بار سمجھوتے کی شرطیں توڑی ہیں۔ اب سب کو ڈر ہے کہ ایران ان E3 کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھا سکتا ہے۔ اسی کے مد نظر جرمنی نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ چائنا اور روس ایران کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایران کے خلاف سنیپ بیک پابندیوں کی دونوں نے جم کر مخالفت کی ہے۔ چین نے جمعے کے روز کہا کہ وہ ایران کے ایٹامک پروگرام پر دوبارہ پابندیاں لگانے کے حق میں نہیں ہیں۔ چینی فارن منسٹری کے ترجمان گو جیاکن نے بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس کی اور اس دوران انہوں نے جو کہا وہ سنیے کہ ایرانی ایٹامک مسئلہ اس وقت ایک اہم موڑ پر ہے۔ سنیپ بیک کا عمل شروع کرنا مسئلے کے سیاسی اور صلح صفائی والے حل کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ بیان دوستو اس وقت آیا ہے جب جرمنی، فرانس اور برٹن یعنی کہ E3 نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ وہ ایران پر یونائٹڈ نیشنز کی پرانی پابندیاں دوبارہ لاگو کر رہے ہیں۔ ایران نے اس قدم کو غیر قانونی اور بیکار قرار دیا ہے۔ روس نے بھی، چائنا کے علاوہ روس نے بھی یورپی ممالک کی اس کوشش کو قانونی حیثیت سے خالی اور UN کی قرارداد 2231 کے خلاف بتایا ہے۔ نیند سے جاگے ترکی نے آج ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور واقعی بڑا ہے۔ اس نے اسرائیل سے تمام تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ اب نہ کاروبار ہوگا، نہ اڑانے، نہ واپسی کا کوئی راستہ۔ یہ تعلقات سدھریں گے نہیں، کہا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا اسے ترکی کا ہسٹورک قدم بتا رہا ہے، تاریخی قدم۔ خبر کے مطابق ترکی نے اسرائیل کے خلاف اب تک کا سب سے سخت قدم اٹھاتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان سارے کاروبار اور تجارتی تعلقات ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ترکی نے اپنی فضائی حدود یعنی کہ اپنے ایئر اسپیس بھی اپنا جو ہے وہ اسرائیلی جہازوں پر مکمل طور پر بند کر دیا، یعنی کہ اب ترکی کے آسمان سے کوئی بھی اسرائیلی جہاز گزر نہیں سکے گا۔ اسے اگر ایسے جانا ہے تو پورا گھوم کے جائے۔ یہ اعلان جمعے کو ترکی کے وزیر خارجہ حکان فیدان نے کیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل سے تمام کاروبار اور تجارتی رشتے ختم کر دیے جائیں اور ہماری فضائی حدود یعنی ایئر اسپیس اب ان کے جہازوں کے لیے بند ہے۔ فیدان نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے اور بھوک اور پیاس کے ذریعے غزہ کو رہنے لائق جگہ نہیں چھوڑنا چاہتا، یعنی بھوک اور پیاس کو ہتھیار بنا رہا ہے۔ کئی ارب ڈالر کا سالانہ کاروبار ان دونوں کے بیچ تھا، کئی ارب ڈالر کا۔ اور یہ دونوں ملک، ان کے رشتے سیاسی تنازعات کے باوجود اب تک مضبوط تجارت اور ٹورزم پر قائم تھے، ٹکے ہوئے تھے، لیکن یہ سلسلہ اب اچانک ختم کر دیا گیا ہے۔ ترکی نے اس فیصلے کو قطر اور مصر کے ساتھ مل کر فلسطینی مسئلے کا بنیادی حل تلاش کرنے کی کوشش کا حصہ بتایا ہے کہ اس سے شاید اسرائیل پر پریشر پڑے۔ حکان فیدان نے اسرائیل کے انتہا پسند منسٹرز
कट्टरपंथी मिनिस्टर्स और सेटलर्स पर भी इल्ज़ाम लगाया कि वो बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा के हालात को भड़का रहे हैं। इसराइल की हालिया कार्रवाई सीरिया में भी सुर्खियों में आई, जहां उसकी फ़ौज ने तुर्की के बनाए पुराने जासूसी आलात डिवाइसेस इनको पकड़ा और वहां निकाल लिए, उन्हें तबाह कर दिया। इसराइली हुक्काम ने इसे आग से खेलना करार दिया था। तुर्की और अल शरा करीब हैं। अब वो पुराने डिवाइसेस थी या नहीं पता नहीं, लेकिन तुर्की ने भी इसराइल पर ये एक्शन किया है। क्या तुर्की ने ऑफिशियली जो इसका ऐलान किया है वो उसका पाबंद रहेगा? क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर और इस वीडियो के कमेंट में भी बहुत से ऐसे दानिशवर लोग हैं जो ये कहेंगे और कहते हैं कि तुर्की ऊपर से ऐलान करता है, अंदर ही अंदर माल भेजता है, तिजारत करता है। हालांकि तिजारत छुप कर नहीं हो सकती है। इंटरनेशनल वाटर्स में, समंदर में सबके कार्गो पता चल जाते हैं, जहाज़ भी पता चल जाते हैं। अगर तुर्की ने ये फैसला ले ही लिया है तो उसे इसे निभाना पड़ेगा, ताकि जो इमेज एर्दोगान की वजह से तुर्की की गिर गई वो वापस उठ सके। बढ़ते हैं गज़ा की तरफ। इसराइल ने ऐलान किया है कि गज़ा सिटी पर बड़े हमले की इब्तिदाई कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फ़ौज का कहना है कि वह इस वक्त गज़ा सिटी के किनारों पर पूरी शिद्दत से ऑपरेशन चला रही है और ये अभी बस हमले की पहली मंजिल है, पहला फेज़ है। इसराइल का गज़ा पर कहर जारी है। मरने वालों का आंकड़ा अल जज़ीरा के मुताबिक 63,000 के पार निकल गया है और भुखमरी ने अब तक 322 फ़लस्तीनियों की जानें निगल ली हैं। गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि पिछले 24 घंटे में भूख और मेलन्यूट्रिशन से 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। लेकिन इसराइल का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह से अब तक कम से कम 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी, जिनमें बच्चे और राहत की तलाश करने वाले लोग भी शामिल थे, इसराइली बमबारी में शहीद हो गए। आईडीएफ का हमला अल-मवासी इलाके में भी हुआ, जिसे इसराइल ने खुद ह्यूमैनिटेरियन जोन बताया था। अब ज़रा सोचिए, जिसे ह्यूमैनिटेरियन जोन या मानवीय इलाका कहा गया हो, वहीं लाशों का ढेर लगाया जा रहा है। ये कितनी बड़ी हैवानियत है। गज़ा से एक बड़ी और बुरी खबर आई है। इसराइल ने गज़ा सिटी को पूरी तरह से डेंजरस कॉम्बैट जोन या वॉर जोन यानी ख़तरनाक मैदान जंग डिक्लेयर कर दिया है। जुमे को आईडीएफ ने कहा कि शहर में अब रोज़ाना होने वाला टैक्टिकल पॉज अब लागू नहीं होगा, यानी मदद हासिल करने के लिए जो कुछ घंटों के लिए गोलीबारी रोकी जाती थी, अब वो भी नहीं रोकी जाएगी। ये एक बड़े ऑपरेशन की अलामत है। गज़ा सिटी, जो फ़लस्तीन का सबसे बड़ा शहर है, अब सीधे एक बड़ी जंग के दायरे में है। यह ऐलान उस वक्त हुआ जब आईडीएफ शहर पर कब्जा करने की तैयारी में है और अब कोई भी एजेंसी एड या रिलीफ डिलीवरी रोकने के नाम पर आईडीएफ की कार्रवाई में रुकावट नहीं डाल पाएगी। ये वाकई गज़ा सिटी के लिए सबसे ख़तरनाक हालात हैं। पूरा शहर तबाह किया जा रहा है, हज़ारों घर ज़मींदोज़ किए जा चुके हैं। आईडीएफ ने ऐलान कर दिया है कि गज़ा सिटी अब पूरी तरह से वॉर जोन है और शहर में ह्यूमैनिटेरियन एनजीओज़ को जो स्पेशल प्रोटेक्शन मिल रही थी वो अब ख़त्म हो गई है, यानी मदद बांटने वालों की मदद कोई नहीं करेगा। मदद बांटने वालों की सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटी उठा ली गई है और अब हर कोई अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। अगर वो मदद बांटता है और मारा गया तो आईडीएफ की कोई जिम्मेदारी नहीं। जुमे की सुबह 11:30 बजे आईडीएफ ने कहा कि अब गज़ा सिटी को फुल फ्लैश्ड कॉम्बैट जोन माना जाएगा। हालांकि अल-मवासी और सेंट्रल साउथ गज़ा के कुछ इलाके अब भी लोकलाइज सीज़फायर के दायरे में रहेंगे, ये आईडीएफ ने कहा है। कब तक रहेंगे पता नहीं। यह कदम इस बात की तरफ इशारा करता है कि गज़ा सिटी में आईडीएफ का फुल स्केल हमला कभी भी शुरू हो सकता है। जहां पिछले हफ्तों से इस मसले पर कई बार बहस और तकरार होती रही है। दुनिया के कई ममालिक ने इस हमले को रोकने की अपील भी की, लेकिन इसराइल रुक नहीं रहा। आइसलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्लोवेनिया, स्पेन और भी कई ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने जुमे को एक जॉइंट स्टेटमेंट में गज़ा स्ट्रिप में हालिया इसराइली ऑफेंसिव और गज़ा सिटी में परमानेंट मौजूदगी बनाने के प्लान की कड़ी मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ इस रीजन में टेंशन और इंस्टेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं और इसे रोकने के लिए इमीडिएट डी एस्केलेशन ज़रूरी है। जंग को हल्का करना, रोकना, हमलों को हल्का करना, रोकना, ये सब ज़रूरी है, लेकिन नेतन्याहू किसी की नहीं सुनता। गज़ा शहर कैसा है, कैसा हो रहा है गज़ा सिटी, अब देखिएगा। ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ये अगस्त 8 की है और ये अगस्त 25 की नीचे।
अगस्त 8 की तस्वीर में देखें तो 2 साल की जंग के बावजूद भी न जाने कितनी इमारतें और घर बच गए थे गजा सिटी में, लेकिन पिछले 17 दिन के अंदर गजा सिटी का ये हाल हुआ है कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि खुरच कर फेंक दिया गया है ज़मीन से, पूरा मिटा दिया गया है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा लोग थे, यहाँ जो लोग थे वो खदेड़ दिए गए हैं। पूरा शहर, बीच का हिस्सा तो मटिया मेट किया जा रहा है, बम लगाए जा रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको इस शो में नहीं दिखा सकता, एक साथ 1 2 3 4 5, मुझे लगा मैं कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहा हूँ। आज इस तरीके से आज घर उड़ाए गए हैं, बहुत बुरे हालात हैं। हम सुबह के शो में वो तस्वीरें या एक स्पेशल शो में दिखाने की कोशिश करेंगे। इसराइल ने कहा है कि उसे 2 हॉस्टेजेस की बॉडीज़ मिली हैं। जैसे ही गजा सिटी में बड़ा ऑपरेशन शुरू किया आज आईडीएफ ने, तो उसे 2 हॉस्टेजेस की बॉडीज़ भी मिली। अब इन्हें अपने साथ हमास के लोग ले जा नहीं सकते थे, तो उन्हें पीछे छोड़कर उन्हें अपनी पोजीशन से हटना पड़ा या भागना पड़ा ताकि आगे जाकर मोर्चा ले सकें। 2 हॉस्टेजेस की बॉडी और मिल गई है। ये कब मारे गए, अभी इन सब की पूरी जो है वो जांच चल रही है, लेकिन अब जाहिर सी बात है नेगोशिएशन करने में हमास के पास अब थोड़ी और कमज़ोरी आ गई होगी। ईरान बैक्ड हुथी पीएम किल्ड इन इजरायली एयर स्ट्राइक्स ऑन यमन्स कैपिटल। यूरो न्यूज़ बहुत बड़ी वेबसाइट और मीडिया ग्रुप है, इन्होंने लिखा है कि ईरान की हिमायत वाले हुथीज़ के प्राइम मिनिस्टर, हुथीज़ की हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इसराइल के हमले में मारे गए हैं। इसराइल ने कल जो बमबारी की थी उसमें पहले हुथीज़ के चीफ ऑफ स्टाफ और हुथीज़ की हुकूमत के डिफेंस मिनिस्टर के मारे जाने की दावे किए गए इसराइल की तरफ से, लेकिन आज ये बार बार हर जगह और दुनिया के कई और अखबारात में लिखा गया कि इन एयर स्ट्राइक्स में हुथीज़ के प्राइम मिनिस्टर मारे गए हैं। उनका नाम है अहमद अल रहावी। कमाल की बात यह है कि मैंने याह्या सारी का एक सैंडल पढ़ा, मैंने उनके आज जो सुप्रीम लीडर हैं सैयद अब्दुल मलिक अल हुथी, उनके बयान सुने। कहीं भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई बात नहीं की गई, ना डिनाई किया गया ना कबूल किया गया। इसका मतलब कुछ तो है जो हमें बाद में पता चलेगा। याह्या सारी के एक सैंडल से पता है, और कुछ चीज़ें शेयर हुई वो मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले बता दूं, जेफिट जो इसराइली वेबसाइट है उसने अब सुन लीजिए कि उन्होंने ये बताया है कि यमन एक बड़ा इंतकाम लेने जा रहा है और हो सकता है कि वो इंतकाम आज रात ले लिया जाए, और बहुत से मिसाइल लॉन्चर्स मूव हो रहे हैं यमन में। कहा गया मल्टीपल लॉन्च सिस्टम्स रिपोर्टेडली repositioned across the country, fueling concerns of imminent fire toward Israel or regional targets. या तो इसराइल पर या रीजनल टारगेट्स पर। रीजनल टारगेट्स में यमन के हुती किस पर हमला करेंगे? नुकसान तो इन्होंने किया है और बड़ा नुकसान किया है। बहुत सारे लॉन्चर्स मूव हो रहे हैं, और आज जुमा था तो मिलियन मार्च निकला, और वहाँ भी फ़लस्तीन का झंडा, और अब भी जो है वो यमन का झंडा साथ में, सबसे बड़ा फ़लस्तीन का झंडा वो लिए हुए हैं। और याह्या सारी ने इस वीडियो को शेयर जो किया वो किया रात 9 बजे, और यही लिखा, और तब तक अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ नहीं बताया, यही लिखा कि हम गज़ा के साथ हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं। यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं की गई। खैर, अब कुछ खबरें ये हैं कि जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं मादुरो, उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला एक अभेद किला है जिसे कोई भेद नहीं सकता, जिसे कोई चीर नहीं सकता, यहाँ कोई घुस नहीं सकता। और जो अमेरिका ने वॉरशिप्स तैनात किए हैं कैरिबियन में, उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो करके देख लें, वो आएंगे नहीं। और वो जो वॉरशिप्स तैनात करके हम पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ मेरे लिए ही फ़ायदेमंद होगा, वेनेजुएला के लिए फ़ायदेमंद होगा, इसमें कोई फ़ायदा अमेरिका का नहीं होने वाला, ये निकोलस मादुरो ने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।